Write down the question or business letters. The first question is, what are business letters? Where's your phone? In this lesson, we will come to know what are business letters, what are formal and informal letters, what are official letters, and what are the styles of a format of a letter. Please read the letters. Please read the questions. What are business letters? What are formal and informal letters? What are official letters? How are they different from business letters? What are styles, formats of letters? What are the parts of letters? Can you tell me what are business letters? एग्जाम में क्या लिखोगे? What will you write in exam? क्या लिखोगे? जानते तो हो, लेकिन उसको बताना है ना, उसको समझाना है, उसको लिखना है. इसका है. Letters written for business purposes are business purposes. तो ठीक है, देखिए डेफिनेशन सामने है. Business letter is a letter which is used by organizations to communicate in a professional way. मैम क्या बताए थे? बिजनेस लेटर इज ए लेटर. आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? इट्स ओके. ओके, इट्स ओके, गॉट इट. A business letter is a letter which is used by organizations. हर एक organization business letters use करते हैं to communicate.
क्यों लिखते हैं? टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे। किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? विद कस्टमर्स, अदर कंपनीज, clients, investors, etc. And business letters use formal language and a specific style, which is called format. So a business letter is a letter which is used by organizations to communicate in a professional way with customers, other companies, clients, investors. And business letters uses a formal language and a specific format or style. An individual can also use it while writing an application for a job or a cover letter. Or any मैम ये कवर लेटर क्या होता है? yeah? कवर लेटर क्या होता है? ठीक है, कवर लेटर क्या होता है? क्या? कवर लेटर लिखा जाता है जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो अपना रिज्यूमे भेजते हो। क्या भेजते हो? अपना रिज्यूमे। रिज्यूमे भेजते हो। रिज्यूमे के साथ कवर लेटर भी भेजते हो। ठीक है, व्हाट डू यू सेंड? अपना रिज्यूमे और कवर लेटर। तो इसमें मैम कंटेंट क्या होती है इसमें? वही तो बता रहे हैं ना, रिज्यूमे में बहुत कुछ बातें तुम नहीं डिटेल में नहीं लिख सकते हो, वो सारी की सारी बातें तुम लिखोगे कवर लेटर में। सो कवर लेटर इज नथिंग बट एड ऑन ऑफ योर रिज्यूमे। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा हाईलाइट करना है, कुछ और अपने बारे में बताना है, कुछ रिक्रूटर को समझाना है कि मैं क्यों इस जॉब के लायक हूँ, हाउ आई एम फिट फॉर दिस जॉब। तो उस तरह से आप अपने को हाईलाइट करेंगे, अपना स्किल्स को हाईलाइट करेंगे एक कवर लेटर में। आज के दौरान, आज के युग में, इन टुडेज वर्ल्ड, एनी जॉब एप्लीकेशन विदाउट कवर लेटर विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो कहीं भी आप जॉब एप्लीकेशन डालते हो तो कवर लेटर डालना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, रिक्रूटर को आसानी होती है आपको सेलेक्ट करने में, इसलिए कि वो बहुत कुछ आप और एक्स्ट्रा एड ऑन करते हैं, है ना। तो दिस इज अ कवर लेटर। इसमें कंटेंट रहता है, आप ही के बारे में आप लिखते हैं, अपने बारे में, अपने स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज। ठीक है, अंडरस्टूड? गॉट इट, गॉट इट। So another simple definition is a letter for business purpose is a business letter. A simple definition: a letter for business purpose is a business letter, which answers the question, what do you understand by the term business letters? Or what are business letters? Define business letters. So this is the answer to question number 1.
Next we come, what are the types of business letters? Hmm. What are the types of business letters? What are the types of business letters? Inquiry letter, offer letter, order letter, cover letter, termination letter, pink slip. बाकी समझ में आ गया? ऑफर लेटर क्या है, समझ में आ गया? Yes, sir. हम्म। Termination of executive less matter. वही तो है। टर्मिनेशन लेटर अगर कोई अच्छा से काम नहीं कर रहा है, the person who is going to be fired from the job, किसी कंपनी से टर्मिनेट करना है, निकालना है, तो उसको ले दिया जाता है टर्मिनेशन लेटर, which is also called the pink slip. पिंक स्लिप जिसको कहा जाता है टर्मिनेशन लेटर कहा जाता है. These are some of the types of business letters. Now we come, what are the styles of business letters? चलिए, first है block style. There are three styles: block styles, modified block, semi block. मॉडिफाइड ब्लॉक में सारा, सॉरी, ब्लॉक फॉर्मेट में सारा चीज लेफ्ट साइड से शुरू होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट, इट एंड्स इन द लेफ्ट. So this looks neat. The question can come, what are the styles of a letter? What are the formats of, how is block format different from semi block and modified block? So block style क्या है? Most commonly used format है. I will explain this. And all the paragraphs are separated by a double line space. Single spaced है, except for paragraphs, double space करके separate करने के लिए double space. For example, this is the format of a block style. It starts on the left
the heading, the inside address, everything is on the left. Dear sir, we left, सब कुछ left में, it also ends in the left. And paragraph was separated by double spacing. Do you see? Yes, ma'am. So this is the format of a block style. Modified block. Modified. This is the modified block. Difference क्या है? Block style modified block में कोई difference नहीं है except कि date line जो है right side में है और complementary clause yours sincerely वो left side में, right side में. बाकी everything is on the, everything is like the block style. And paragraph जो होता है 5 spaces from the क्या है? डेट राइट में होता है। डेट राइट है और योर सिंसियरली भी राइट है और पैराग्राफ्स जो स्टार्ट होता है नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड 5 स्पेसेस फ्रॉम द लेफ्ट. डू यू सी? ये डिफरेंस हो गया ना? ठीक है, यू सी द डिफरेंस. 3 differences: date line, closing line, and paragraph starting 5 spaces from the left. Please write down. Modified block. You have to write down the differences because it will come in your exam. You will have to explain how. अब लेटर बनाइए, ब्लॉक स्टाइल में लेटर लिखिए, मॉडिफाइड ब्लॉक में लेटर लिख के दिखाइए. हाउ एक्सटो मी द फॉर्मेट. स्पेसेस है हम्म, कितना स्पेसेस है पैराग्राफ के लिए 5 spaces. It is written. Each paragraph is indented 5 spaces from the left. And the third is semi-block style. This is the old-fashioned style of writing. But people are writing anyways. Block style, modified block, and semi-block style. सेंडर्स का एड्रेस राइट Hmm. इसमें सेंडर का एड्रेस राइट Hmm. Sender's address right में होता है
There's some change. Informal style is the old style of writing. पहले इसी तरह से लिखा करते थे, अभी भी कुछ लोग लिखते हैं, but it is very kind of informal writing. Business English में formats are very important. You must know what is the format, how to write it. Understood? Block style, semi-block style, and modified block. Format आप समझ लिए हैं? Format आप एक बार फिर से देख लें and try to understand. This is the block style. Write an application in block style. अभी लिखो. On the left side, top, you will write your name and your address, the date. किसको लिख रहे हो? फिर लिखोगे. And then I just wanted to write a letter in block style. Do not copy the content. Content should be your own. Okay. Yes, who is Revati? Yes, Revati. हाँ मैम. हाँ, क्या तुम बोल रहे हो? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मैम ये आप जो ये डिफर कर रही थी ना, डिफरेंट बता रही थी दोनों में. हाँ, तीनों में. वो हाँ, हम्म, ये समझ में कुछ अच्छा से नहीं आया है. कैसे बता देंगे? सिर्फ तो करवा रहे हैं. ब्लॉक स्टाइल सारा लेफ्ट में शुरू होता है. सेमी ब्लॉक स्टाइल क्या होता है? वो सारा ब्लॉक स्टाइल की तरह होता है, खाली डेट राइट में होता है और योर सिंसियरली राइट में होता है. ठीक है, आप करके देखोगे तब तो. बिजनेस इंग्लिश लेक्चर से नहीं होता, करने से होता है. ठीक है, अभी मैंने लोगों को कहा है कि आप ब्लॉक स्टाइल का लेटर लिखो अभी. ठीक है, राइट द ब्लॉक स्टाइल. कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप बार बार पूछिए तो कोई दिक्कत नहीं. ये ब्लॉक स्टाइल हुआ जब सारा लेटर्स, सारा चीज लेफ्ट से शुरू होता है. पहले एक समझो फिर दूसरा समझोगे ना. इट इज कंफ्यूजिंग, बिगिनिंग में कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है. तो आपका इंटरनेट प्रॉब्लम होगा. हेलो. हेलो, हाँ मैम अब आ रही है. तेरा कनेक्शन प्रॉब्लम होगा भैया. एंड मैम आपका रोल नंबर 16 अपना कैमरा ऑन रखा करो भाई. कैमरा ऑफ रखोगे तो हमको समझ नहीं आ रहा कौन क्या पूछ रहा है. अभी भी कैमरा तुम्हारा ऑन नहीं है. ग्लिच है मैम ये ऐप का. चलिए ब्लॉक स्टाइल बनाइए पहले. मैथ्स एंड बिजनेस इंग्लिश लेक्चर से नहीं होता है, करने से होता है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टॉप राइट में अपना नाम लिखोगे, अपना कंप्लीट एड्रेस. ठीक है, स्पेस छोड़कर अभी लिखो. राइट इट, डू इट जस्ट नाउ. हाँ देखो ना, तुम फॉर्मेट देखो पहले क्या क्या बता रहा है.
वहां पे जो भी कुछ दिखा रहा है आप उस वहां पर लिखिए टॉप साइड में योर नेम एंड योर कंप्लीट एड्रेस, और ऊपर में लिख दो आप बना रहे हो ब्लॉक स्टाइल। ठीक है, अपना एड्रेस लिख के स्पेस छोड़ो एंड राइट द डेट। मैंने क्या कहा, टॉप लेफ्ट अपना नाम, अपना एड्रेस समझा करो, वही उसको स्लो, योर नेम योर एड्रेस, लीव अ स्पेस, व्हाइट स्पेस है ना यहाँ पर, है स्पेस कि नहीं, देखो जरा फॉर्मेट में देखो, स्पेस छोड़ो, राइट टुडेज डेट। मैम ये मिस्टर स्मिथ जो है ये खुद राइट कर रहा है, जो किसी को राइट कर रहा है। तुमको जितना बताया जा रहा उतना करो ना तुम। मैम वही पूछ रहा हूँ, जो डेट के बाद जो नीचे वाला आप डिस्क्रिप्ट लिखे हैं, तो वो जिसको सेंड करना है उसका नाम लिखना है क्या? अभी मैं वहां पर आई हूँ क्या, तुम पहले डेट तो लिखो आज का, उसके बाद जहां मिस्टर स्मिथ लिखा हुआ है ना, इस बंदे ने मिस्टर स्मिथ को लेटर लिखा है, इसको कहा जाता है इनसाइड एड्रेस, जो बाद में तुम पढ़ोगे। तुम जिसको चिट्ठी लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम डायरेक्टर को लिख रहे हो, या तुम एप्लीकेशन 2 दिन का छुट्टी ले रहे हो और तुम डीन सर को लिख रहे हो, तो यहाँ पर वो लिखोगे ना, या डायरेक्टर सर सिमज कॉलेज पटना लिखोगे ना, लिखो। Yeah. यहाँ पर वही लिखा, उन्हीं का एड्रेस होता है जिसको तुम चिट्ठी लिख रहे हो, द recipient's address. For example, if you're writing to me, you will write my name, you will write my address. ठीक है, तो तुम यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हो लीव का, तो you write to, do not write to, you just write the director Simaj College Patna. Ma'am, it is mandatory to describe the address even I am existing a student of SIMED. तुम सब्जेक्ट लाइन पे क्यों जा रहे हो? Do not go into the body of the letter. तुमको जितना कहा जा रहा है उतना करो. Write the inside address or the receiver's address. ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लाइन यहाँ पर नहीं है, एक स्पेस छोड़ो और लिखो सब्जेक्ट लाइन, लिखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लीव एप्लीकेशन फॉर 2 days, वो लिखो, लीव एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर 2 days। फिर स्पेस, वाइट स्पेस छोड़ो, डियर सर। अब यहां से आपका कंटेंट जाएगा और फिर आप डियर सर लेकर के बिल्कुल लेफ्ट में आ जाइए एंड राइट योर एप्लीकेशन। समझ गए? तो दिस इज द ब्लॉक स्टाइल। लिखो, अभी बॉडी लिखो, और यहाँ पर तुम लिखोगे तुम बीकॉम के स्टूडेंट हो। सबसे पहला पैराग्राफ जो होता है, स्टूडेंट अपने आप को या राइटर अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, आप क्या लिखोगे? दैट यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीकॉम सिमज कॉलेज पटना एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर फॉर बिकॉज आई वांट लीव फॉर 2 days। देखो, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से शुरू करो, लेफ्ट साइड सर करके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट जाओ, जैसे फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट पे देखो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। हाँ, और बिल्कुल लेफ्ट चले जाओ और वहां से फिर शुरू करो लिखना। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद स्पेसिफाई करो कि व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। और यहाँ ये इनसाइड एड्रेस डालना जरूरी है, तुम जिसको चिट्ठी लिख रहे हो उसका नेम एंड एड्रेस डालना जरूरी है। इन बिजनेस लेटर्स
ऐसा ही किया जाता है। और आप क्या लिख रहे हो? यू आर राइटिंग ब्लॉक स्टाइल फॉर्मेट। जब तक कि आप मैथ की तरह इंग्लिश करोगे नहीं ना, फॉर्मेट समझोगे नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। करके सीखा जाता है। मैम एक बार बोर्ड पे ही लिख के बता दीजिए। आप लिखो ना, आप अपने अपने मन से लिखो। एवरीथिंग कैन नॉट बी डिक्टेटेड। मैंने स्टाइल बता दिया है, क्या लिखना है मैंने बता दिया है कि तुम सिमेज कॉलेज के स्टूडेंट हो, बीकॉम के, तुमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उतनी लिखो। आप क्या लिखोगे? अपने को इंट्रोड्यूस करना है, वो भी मैं बताऊं क्या? आई एम स्टूडेंट फ्रॉम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर and I want leave for 2 days on account of Chhath Puja. और कुछ और। अब मैंने ये कहा कि आप लिख के बताइए, तुम लिख के, मैं बता रही हूँ ऑलरेडी। तो जब हाँ, तो रीजन भी मैंने बता दिया, तो ऐसे हेल्प किया जाता है ना। एंड वन थिंग मोर, जिस किसी को समझ में अगर नहीं आ रहा है फिर भी, तो यू कैन मीट मी 5 to 6, आप मिल सकते हैं समझने के लिए। डाउट क्लास में हम बता देंगे आपको, लेकिन क्लास काफी इनफ है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आने वाली कोई बात नहीं इसमें। फिर भी कोई अगर है इश्यूज तो आप मिल सकते हैं। मैम इशू कब? कॉलेज एंड आई वांट लीव फॉर 2 days ऑन अकाउंट ऑफ मैरिज सेरेमनी इन माय फैमिली, इमरजेंसी वर्क एट होम, कुछ भी हो सकता है, एनी रीजन। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। हेलो मैम इशू को व्हाट्सएप के थ्रू ये कर सकता हूँ क्या, क्लियर कर सकता हूँ क्या? क्या? हेलो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। Because I'm getting frustrated what to write, where I have to put subject. I'm not getting anything. It will be more helpful if you write on the board to online student. जब आप इतनी इंग्लिश बोल ही रहे हो तो तुम आप नहीं लिख सकते हो कि मैं सीमेज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ? इसमें क्या लिखोगे? No, just not getting where to put up format of subject. मैंने सब्जेक्ट क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनसाइड एड्रेस लिख रहे हैं, जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर सर को लिख रहे हैं, फिर स्पेस छोड़ करके आप लिखिए सब्जेक्ट लाइन। यहाँ पर नहीं है तो क्या हुआ, आप लिखिए सब्जेक्ट लाइन। Okay, okay. अंडरस्टैंड, लिसन टू मी फर्स्ट, देन स्टार्ट स्पीकिंग। तुम सुन नहीं रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा हो रहे हो। ठीक है, यहाँ इस लेटर में सब्जेक्ट लाइन नहीं है। Yeah. ये सब्जेक्ट लाइन आपको नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि फॉर्मेट क्या है ब्लॉक स्टाइल का। Yeah, got it. So I got it frustrated because I have not seen any format of it. आप देख नहीं पा रहे हो क्या स्क्रीन? Yeah, I got it. What do you want to say? But because I have frustrated because I am not seeing any subject in this format. आई Better. टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग, सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन तुम लिखोगे सब्जेक्ट लाइन। मैंने पहले ही कहा है, प्लीज पे अटेंशन इन क्लास। It's okay. मैंने कहा था सब्जेक्ट नहीं है, आप लिखोगे। प्लीज बी अटेंटिव इन क्लास। ऑलराइट, सो क्या व्हाट हैव यू रिटन इन द डियर सर? सबसे पहले पैराग्राफ में द राइटर विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। डियर सर, माय नेम इज, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, और फिर बताना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं। I would like to request you to grant leave for 2 days. I would like to request you to grant leave for 2 days on account of whatever. एक स्पेस छोड़िए, पैराग्राफ खत्म हो गया आपका।
स्पेस छोड़िए, फिर आप लिखिए कंक्लूडिंग लाइन, थैंकिंग यू and looking forward to a favorable response. फेवरेबल मतलब होता है कि आप मेरे फेवर में आपका रिस्पॉन्स रहेगा. थैंकिंग यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू your favorable response. Yours obedient student, yours obediently, your name. सारा का सारा लेफ्ट साइड में जा रहा है. फॉर्मेट ये रहेगा. मैंने सिंपल एक एप्लीकेशन आपको लिखवाया है इन द ब्लॉक स्टाइल. कोई चिट्ठी बिना सब्जेक्ट लाइन के अधूरी है. I was not showing you the parts of letter यहाँ पे. I was showing you the block style, wherein everything is specified towards, aligned towards the left. यहाँ पर parts of a letter के बारे में बात ही नहीं थी. Subject line रहे या नहीं रहे. This was only a format of a block style letter. So please pay attention in class. दिखाया क्या जा रहा है. और इस फॉर्मेट को देख करके हम आपको लिखवा रहे हैं. Write an application in block style for an application for 2 days leave. Did you understand? Yes, sir. और बिना सब्जेक्ट लाइन के कोई लेटर हो ही नहीं सकता है. सब्जेक्ट लाइन इज सो इम्पोर्टेंट. दे कैन नॉट बी एनी लेटर विदाउट सब्जेक्ट लाइन. आपकी जो बुक में जो है उसमें आप देखेंगे कि ब्लॉक स्टाइल में क्या है, बस ए इस तरह से लिखा हुआ है. हाँ, तो सिर्फ फॉर्मेट समझाया गया है आपको. ठीक है. थैंकिंग यू यहाँ पर क्यों मार्क्स कटेगा आपका. सारे लेफ्ट में. ये क्या, यहाँ 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 ऑल लेफ्ट. आदत यहाँ तुमको सेमी क्या ये आदत हो गया है ना. 5 spaces from the left. This is the 5 spaces from the left, which should not be because you're writing block style. The block style, this is not justifying block style. तुम ऊपर लिखो block style, but what is this 5 spaces for? ठीक करो इसको. So these are the things you will come to know practically. English class is a very practical class. Maths and English बिना किए नहीं होना है. So this is something. मैम ये गैप मैंडेटरी है क्या? गैप जो दिया हुआ है सेंटेंस के बाद गैप दिया है, जैसे 2 गैप में देख रहा हूँ उस लेटर पे. Yes, गैप जरूरी है. ये सेंटेंस नहीं है, पैराग्राफ को सेपरेट किया गया. हाँ, तो ये पहले वाले में एट फर्स्ट किस चीज को सेपरेट किया हुआ है, जिस चीज का मेंशन एज ए सब्जेक्ट किया हुआ है क्या? This is the first paragraph, number 1. Second paragraph, third paragraph. Each paragraph is separated with double spacing. अच्छा, स्पेस क्यों दिया जाता है? So that पढ़ने में आसान हो. अगर एक मैम each and every letter it is mandatory to have 2 paragraph that I am seeing here. You may write 1 paragraph only. You may write 3 paragraphs, but each paragraph should be separated with single space. It's okay. Understood block style? Yeah. So in the list, सिर्फ नेम लिखेंगे या फिर योर फेथफुल रहेगा? हाँ, yours faithful. सिर्फ नेम कैसे लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहते हैं उसको. ये हम पास ऑफ लेटर नहीं बता रहे. आपको सिर्फ ब्लॉक स्टाइल का मैंने बताया है. yours faithfully, yours sincerely, yours truly. लेकिन आप स्टूडेंट हैं, yours obediently, and then your name. So this was the block format. The next class we will write theory. आप समझ गए हैं, block style, modified and semi block style. But practical कैसे करोगे? मेरे साथ करोगे बैठ के. Otherwise not. मैम मैं लिख के व्हाट्सएप कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा ये ठीक है या नहीं. एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, आप मेंटेन करिए एक असाइनमेंट कॉपी.
Everybody is doing. BCA, AKU, first semester, they already are doing, they already have given their test also. BBA, AKU have submitted their assignments. आप एक कॉपी ले लीजिए जिसमें सारा चीजें अभी जो आप रफ लिख रहे हो ना, convert your classroom into that rough into that fair in a assignment copy for better understanding, and then show it to me. ठीक है? I will check your assignment copies. जैसे अब तुमने चेक करा है ना, मैंने आपको तुरंत बता दिया कि ये wrong है. So unless and until you show me what you're doing, how will I be able to know? Yes. So first you write these block style. Everybody write an application, write anything, write any letter, and show it to me in block style. The next class will deal with what is semi-block style, modified block style. तो उस assignment copy में वो सारा compile करते रहिएगा. And in assignment के लिए you will be getting marks out of 20. Okay. So this is mandatory. WhatsApp करोगे वो तो ठीक है, that's fine. But assignment में तो तुमको क्या WhatsApp देख के हम थोड़ी करेंगे ना. Assignment में आपको marks वहीं पर दे देंगे, whether it's right or wrong, right? So maintain an assignment copy, everybody. Yes, sir. Okay? Now, all my students. Yeah, 10 students only.